Good afternoon, students. I hope that you are well at your homes. बहुत चंगे होंगे तुसी ते नाल ऑनलाइन क्लासेस भी ला रहे होंगे ताकि थोड़ा जो है पढ़ाई का नुकसान ना होवे. So today we are going to start the topic nouns of class 7th. आज आपां इंग्लिश सब्जेक्ट दे विच क्लास 7 का टॉपिक nouns पढ़ांगे. I hope you would all be comfortable in my teaching. So let's start. What do you mean by noun? एक बहुत ही कॉमन जा क्वेश्चन. भाषा जो है वो बहुत सौखी है. I mean it's quite easy because all the languages are interrelated. सारियां भाषावां एक दूजे नाल मिलियां हुई हैं. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ हिंदी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ. सो नाउन है कि नाउन जिस दी आपां ट्रांसलेशन करिए वो नाम है पंजाबी दे विच. अंग्रेजी दे विच इहनूं नाउन्स कहंदे आ. नाउ द फैक्ट इज़ दैट वी शुड कंसनट्रेट मोर ऑन डेफिनेशन दैन वी कैन क्लीयर आर कंसैप्ट्स. बेसिकली की हुंदा कि आपां नूं कोई भी गल एक्सप्लेन करनी पै जे ना ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ. ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ. ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਊਨਸ. ਕੰਸੈਪਟ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਨਾਊਨਸ, ਵਟ ਆਰ ਨਾਊਨਸ और what do you mean by noun? Noun है कि most of the books एक बहुत ही common definition जिहड़ी कि थोड़ियां किताबां 'च भी लिखी गई है, that the name of a person, thing or a place is called noun. ठीक है, बहुत prevalent ते बहुत ही common definition है. आज मैं तुहानूं एक होर नवीं definition दस्सण जा रहा in a very simple terms, in a very layman's language. बहुत ही common, बहुत ही simple, that is a name of a thing called noun. Simply, everything which has a name called noun. A name of a thing called noun. किसी भी चीज़ का नाम noun है. Whatever so that lies on this earth, in the sky, wherever, that is called noun. Thing का मतलब here everything, whether it is non-living, living, whether we can touch, whether we cannot touch, whether we can see, whether we cannot see, whether we cannot go there, whether we go there. हर एक चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम है. whatever the thing is that, but we call it by any name. अगर उस चीज़ नूं आपां कुछ भी कह के बुलाने आ, इफ वी कॉल इट बाय एनी नेम, दैट नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन. बस इन्नी गल याद रखनी है. अपने आले दुआले क्लासरूम दे विच, घर दे विच जो भी चीज़ां है जिहड़ियां आपां नूं दिखदियां है, जिन्हां दे आपां नाम रखे हुए है, दैट इज़ कॉल्ड नाउन. सपोज वन एग्जाम्पल, अ ड्रीम, सुपना. यू ऑल सी ड्रीम्स, आई थिंक सो, वी ऑल सी ड्रीम्स. ਤਾਂ ਡਰੀਮ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਾਊਨ ਹੋਊਗਾ. ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ. ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼, दैट इज़ वाई आई से दैट थिंग इज़ थिंग. थिंग इज़ एवरीथिंग, whether it is a non-living or whether it is a living. चाहे वो लिविंग बीइंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, जिस भी चीज़ का आपां कोई नाम रखता, जिस भी चीज़ नूं आपां किसी भी नाम नाल बुलाउने आ, दैट नेम इज़ कॉल्ड नाउन. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई रिपीट that whatever the thing we have
एंड दैट थिंग हैज़ अ नेम, दैट नेम इज़ कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज़ अपने कोल है, अपने आस पास है, अपने तो दूर है और उसनों आपां किसी नाम नाल बुलाउने आ, दैट नेम इज़ कॉल्ड, उस नाम नूं आपां कवांगे नाउन कवांगे। सो वैदर इट इज़ सीन और नॉट, टच और नॉट, वट एवर सो इट इज़, कोई भी चीज़ आओ। नाउ वी मूव अहेड, हुण आपां अगे जाने आ। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। 5 तरह के नाम है, 5 टाइप्स और काइंड्स। वट आर दे, केड़ियां केड़ियां है वो? फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, second is common noun, third is collective noun, fourth is material noun, fifth is abstract noun, abstract noun। and in your books there is one more category, एक और कैटेगरी दसी गई है, that is called concrete nouns। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾउन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। one more category is defined in your books, that is called concrete nouns। concrete noun ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ। we will explain under these all categories, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ 5 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन, ਕਾਮਨ ਨਾउन, ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾउन and abstract noun। these are the 5 kinds of nouns। noun, I again repeat, which has a name, anything which has a name called noun। 5 तरह की कैटेगरीज है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलैक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्सट्रैक्ट नाउन। इन अ नटशैल थोड़ा जिहा डिस्कस करते हैं आज। सैकेंड अगेन लैक्चर दे विच आपां इहनूं पूरी तरह एक्सप्लेन करांगे। प्रॉपर का मतलब है कोई खास, स्पैशल, समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग डिफरेंट, वी कैन से दैट, समथिंग इंडिविजुअल। कोई भी इहो जी चीज़ जिहड़ी खास है, जिसका आपां कोई खास नाम रखा होया है, तो उन्होंने आपां प्रॉपर नाउन कहने आ। प्रॉपर का मतलब, आई अगेन रिपीट, समथिंग स्पैशल, समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग इंडिविजुअल, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर। प्रॉपर मीनस कोई खास स्पैशल चीज़, कोई भी। अपने सारिਆਂ ਦੇ नाम, आपां ह्यूमन बीइंग्स हाँ, आपां सब एक दूजे डिफरेंट हाँ, अपने सारिਆਂ ਦੇ नाम खास है, तो यह प्रॉपर हो जाऊगा। किसी भी बिल्डिंग का, पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम रखा होया है, तुसी किसी पैट का नाम, आपदे घरे कोई भी पैट, कोई भी डॉग पाल रखा, वह कोई नाम रखा होया है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का कोई स्पैशल नाम रखा होया है, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी च आऊगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन दे विच आम नाम जिहड़ा कि खास नहीं है, नॉट पर्टिकुलर, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट समथिंग स्पैशल। इट रिप्रजेंट्स अ क्लास, एक आपदी जाति नूं, क्लास नूं रिप्रजेंट करता है, जिहदे विच कि उस तरह दियां सारियां चीज़ां आ जांदियां। सपोज आई से पेन, सो पेन इज़ पेन। पेन भावें किहड़ी मर्जी कंपनी का है, तो ये सारे, चाहे वो रैड है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, वाइट है, कोई भी है। और इफ़ आई से बुक, जे मैं कहना बुक, तो बुक इज़ बुक, चाहे वो हिंदी दी है, इंग्लिश दी है, मैथ दी है, साइंस दी है, पंजाबी दी है, किसी भी तरह की है, बुक इज़ बुक। तो ये कुछ इहो जे कॉमन नाम है, कॉमन नेम्स है, जिहड़े कि एक तरह की कैटेगरीज के नाम ते लागू हुंदा है, इसलिए इहनूं आपां कॉमन नाउन कहने आ। डोंट वरी, वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इन अ नटशैल, थोड़े जे भी तुहानूं दस्सण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपां इहनूं एक्सप्लेन करांगे। उस तो बाद कलैक्टिव, यानी कि इकट्ठवाचक। कलैक्टिव इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्रुप, जिहड़ा कि किसी ग्रुप नूं रिप्रजेंट करता है, किसी भी ग्रुप नूं, वैदर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वैदर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स,
whether it's a group of animals like army, school, anything, school or a class, group of students, group of soldiers, कुछ भी है ਜਿਹੜਾ कि एक नाम, एक शब्द, one name represents a collective group, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is called collective noun. Then we have a material noun. Material noun ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। Material noun ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ those nouns which cannot be counted but measured only, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, measure ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਕ ਨਾਟ 1 2 3 4 5 6, ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ, ਮਿਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ, ਮਿਲਕ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਉਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਜ਼ ਨਾउन्स ਔਰ ਦੋਜ਼ ਕਾइंड ऑफ थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग फिनिश्ड गुड्स, ਜਿਹੜੀਆਂ कि फिनिश्ड गुड्स बनाउण ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। Those are used for making finished goods. Finished goods मतलब पक्का माल बनाउण दे विच काम आउंदा है। Finished goods ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ पक्का माल बनाउण च काम आउंदियां, लाइक वुड, वुड तो आप आगे कुर्सी बना सकते हैं, कुछ होर भी बना सकते हैं। तो मैटल ਜਿਹੜੇ नॉन मैटल है, ਜਿਹੜੀਆਂ धातुआं है, वो सारियां मटीरियल नाउन होंदियां। दिस इज़ अगेन इन नटशेल, मैं बार बार कह रहा, वी विल एक्सप्लेन अगेन इन अ वेरी डिटेल्ड वे। उस तो बाद लास्ट है एब्सट्रैक्ट नाउन्स। एब्सट्रैक्ट नाउन्स अपनियां फीलिंग्स नू, अपने एक्सप्रैशनस नू एक्सप्रैस करता है, अपनियां भावनावां नू एक्सप्रैस करता है। दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी सीन बट फैल्ट ओनली, जिन्हां नू आपां फील करते हैं, फैल्ट ओनली, जिन्होंने आप फील कर सकते हैं सिर्फ, लाइक एंगर, हंगर, भुख, हैप्पीनेस, कॉवर्डनेस, कायरता, काइंडनेस, दयालुता। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन्स and we will explain in a very detailed way in our next lecture. I hope that you will get it in a very good way. Thank you and have a nice day.